So good evening students. Today we'll start second part of partnership final accounts. इसमें दो पार्ट है. First is introduction to partnership firm and second is partnership file accounts. In last lecture we have already completed with introduction to partnership firm. उसमें एक पार्ट बाकी है, methods of maintaining partners capital account. वो हम इसी के साथ कन्वर्ट करेंगे. Now this partnership accounts is most 80% is same as फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल्ड ट्रेडिंग कंसर्न. 80% उसी के जैसा है. ओके तो जो ऑलरेडी 11th में स्टूडेंट्स थे, ओके तो उनको काफी इजी पड़ेगा ये. ओके तो नए बच्चे वो जरा बराबर से ध्यान दें. ओके पॉइंट क्या. तो लेट मी स्टार्ट. नाउ फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो नाउ कौन बताएगा what are the objectives of final accounts? Yes, tell me. तुमने पढ़ा हुआ है, right? तो कौन बताएगा what are the objectives of final accounts or why we prepare final accounts? Sir, Yes, बोलो. to know the profit and loss of business, And second, to find the financial position of business. yes, this is Pranav, right? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, now there are two main objectives of preparation of final accounts. First, आज हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट इन द बिजनेस. पैसा कमाने के लिए बिजनेस करते हैं. तो हर साल के एंड में, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, वी अ बिजनेसमैन वांट्स टू नो कि इफ आई हैव अर्नड प्रॉफिट और आई हैव मेड द लॉस. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस at the end of each accounting year. Okay. Second, to know the financial position of the business, that is what are my assets, what are my liabilities and what is my capital. और कोई भी बैंक तुमको लोन देगी, okay, first they will see your financial position and depend upon your financial position bank will provide you a loan. तो कोई भी whenever company submits the audited report, तो ऑलवेज पहले क्या होगा? बैलेंस शीट होगा. ओके तो बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट वी फ्रॉम बैलेंस शीट वी नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. ओके तो फाइनेंशियल पोजीशन में क्या आएगा? व्हाट आर माय असेट्स, व्हाट आर माय लायबिलिटीज एंड व्हाट इज माय कैपिटल. एंड एवरीबॉडी नोज दैट कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल. तो देयर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स of preparing final accounts. First, to know the profit or loss of the business, and second, to know the financial position of the business, that is what are my assets, what are my liabilities and what is my capital. Second, given in question. Now when in exam you will be asked the question पूछा जाएगा, उसमें क्या दिया रहेगा? तो you will be given trial balance. Okay, in trial balance there will be 20 to 25 items, but now final accounts in 12th standard is asked for only for 12 marks. So around 16 to 20 items in trial balance and 4 to 5 adjustments will be given. Okay, so for preparation of trial balance, so preparation of final accounts, trial balance is very important. Without trial balance we cannot prepare final accounts. तो सर एग्जाम में क्या दिया होगा? पहले दिया होगा ट्रायल बैलेंस दिया होगा, उसमें 15 से 20 आइटम दे देंगे ट्रायल बैलेंस की और 4 से 5 एडजस्टमेंट दिया रहेगा. राइट नाउ रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर. ओके तो इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न, इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न हम क्या क्या बनाते थे? कम ऑन टेल मी. इन केस ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न हम क्या क्या बनाते थे? रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर क्या था? कौन बोलेगा? यस प्रांजल. यस प्रांजल बोलो. यस सर. हाँ क्या बनाएंगे? रिक्वायर्ड टू क्या क्या बनाना है हम लोग को? इन केस ऑफ सोल्ड कंसर्न हम लोग क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड बैलेंस शीट. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप विल प्रिपेयर 3 अकाउंट्स एंड 1 बैलेंस शीट. फर्स्ट विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट,
Second, we'll prepare profit and loss account. And third, we'll prepare partner's capital or current account. In case of sole trading concern, we do not prepare a capital account. But in case of partnership firm, we each and every question, we have to prepare partner's capital or partner's current account. Now it depends upon the question, how question asks. Either to prepare partner's capital account, or we have to prepare partner's current account, or we have to prepare both. And fourth is balance sheet. So required to prepare first trading account, second profit and loss account, third partner's capital or current account, and fourth balance sheet. तो चार चीज बनानी है. Okay. Now next. Now first, now we learn one after another each and every items. None means we learn trading account, profit and loss account, partner's capital and current account, and fourth is balance sheet. Then adjustment. Then इसमें और एक part है hidden adjustment. Okay. Then we can prepare whole final accounts. तो पहले क्या सीखना हम लोग को? ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, फोर्थ इज बैलेंस शीट, फिफ्थ इज एडजस्टमेंट, सिक्स्थ इज हिडन एडजस्टमेंट, एंड देन ओनली विल प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. ओके, तो नाउ सी, लेट अस स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट. नाउ ट्रेडिंग अकाउंट is in accounts of goods. Trading account is an accounts of goods. Whenever goods comes in, trading account is debited. Trading account is account of goods. उससे पहले और एक बात बताता हूँ. Trading account is an nominal account. Trading account is an nominal account. All types of direct expenses. Sir, कौन से expenses? Direct expenses. So direct means those expenses which are related to goods or which are related to for manufacturing of goods. So all direct expenses are debited to trading account. Trading account कौन सा account है? Trading account is a nominal account. याद रखो. All direct expenses are debited to trading account. Trading account is an accounts of goods. Means whenever goods comes in, trading account is debited. Whenever goods goes out, trading account is credited. जब भी goods आएगा, trading account debit होगा. जब भी goods जाएगा, trading account credit होगा. तो सर goods कब आएगा? Now सुनो, last year closing stock. Last year closing stock means current year opening stock. The closing stock as on 31st March 2020. Closing stock as on 31st March 2020 will become opening stock as on 1st April 2020. जो 31st मार्च 2020 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 1 अप्रैल 2020 को क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा. तो याद रखो, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक मींस करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक. पॉइंट क्लियर? तो सबसे पहले इसमें आएगा ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट है whenever goods comes in, trading account is debited. Purchase of goods. When you purchase the goods, goods comes into the business. When you purchase the goods, so goods comes into the business. Goods business में आ रहा है, right? Goods business के अंदर आ रहा है, right? तो purchase is debited to trading account. जो भी purchase किया है उसमें से हमको क्या माइनस करना है? रिटर्न्स माइनस करना है. तो purchase less returns. Purchase less returns means net purchase. Purchase less returns means net purchase. Say for example तुमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया ना, आउट ऑफ इज 1 लाख 2000 के गुड्स इन ट्रांजिट खराब हो गए. एज पर सैंपल नहीं थे, एज पर साइज नहीं थे, एज पर जो क्वालिटी हमने मंगाया था वो क्वालिटी नहीं था. तो आउट ऑफ रुपीज 1 लाख आई हैव रिटर्न द गुड्स ऑफ रुपीज 2000. मैंने 2000 का गुड्स क्या रिटर्न कर दिया. तो 1 लाख के परचेज में से हम 2000 का गुड्स माइनस कर देंगे कि वो परचेज करने के बाद भी मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा. तो बट नेचुरल आई हैव डन दैट गुड्स. तो जब भी परचेज दिया हो तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और रिटर्न्स दिया हो, परचेज रिटर्न is also called as return outward. Purchase return is also called return outward. So return outward कैसे? जब मैंने गुड्स परचेज किया था तब गुड्स बिजनेस के अंदर आया था,
जब मैंने परचेज किया था तब बिजनेस के अंदर आया था, उसमें से कुछ गुड्स मैं रिटर्न कर दिया, तो बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, तो आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न। तो याद रखो, परचेज अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, परचेज अकाउंट हैज डेबिट बैलेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड परचेज रिटर्न अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस। तो सर ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस में परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में दिया रहेगा। कहाँ दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में। क्यों सर? परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो हम क्या करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे, तो लेस फ्रॉम परचेज। याद रखो, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज। सेकेंड पॉइंट, परचेज अकाउंट, परचेज हैज क्रेडिट बैलेंस एंड परचेज रिटर्न हैज क्रेडिट बैलेंस। तो परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड एंड परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट और ओपनिंग स्टॉक, तो गुड्स आ रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। गुड्स परचेज किया तो गुड्स बिजनेस में आ रहा है, तो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो याद रखो, whenever goods comes in, trading account is debited. Okay, got it? Now second point क्या दिया? whenever goods goes out, trading account is credited. Whenever goods goes out, trading account is credited. जब भी goods बाहर जाएगा, trading account क्रेडिट होगा। ओके, तो कौन से केस में गुड्स बाहर जाएगा? कौन बताएगा? चलो बताओ मेरे को फटाफट, कौन से केस में गुड्स बिजनेस से बाहर जाएगा? कम ऑन टेल मी, कोई 3 रीजन बताओ मेरे। Sales. हाँ, whenever goods are sold, goods goes out of business, तो sales will be recorded on trading account credit side. Second example, Loss by fire or theft. loss by fire or theft. Goods distributed as free sample. Yes, सही है, आपको मिलती है 2 रुपए के 2 लड्डू। ओके, पॉइंट क्या? तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय थेफ्ट। गोडाउन में गुड्स रखा था, गुड्स जल गया, तो गुड्स गया ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गोडाउन में गुड्स रखा था, चोरी हो गया, गुड्स गया, कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर और क्या बताया? और एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था? Goods distributed as free samples. Goods distributed as free samples. Goods मैंने बांटा as an free samples. Okay, तो क्या हुआ? Goods गया तो कहाँ पे आएगा? Trading account credit side. तो whenever goods goes out, trading account is credit. 3 एग्जाम्पल दिए, मैं तुम लोग को और एक एग्जाम्पल देता हूँ। Goods withdrawn by partner. In case of sole trading क्या था? गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर था। यहाँ पे क्या आएगा? गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया, तो बिजनेस से गुड्स गया, क्या गुड्स गया, तो कहाँ पे आएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। तो ये 4 केस हैं। गुड्स सोल्ड, गुड्स विल गोज आउट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रेस फ्री सैंपल्स, गुड्स गोज आउट, गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। Goods destroyed by fire or lost by theft, again goods goes out, trading account credit side. Next, goods withdrawn by partner for their personal use, goods goes out, trading account credit side. और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, वो कहाँ पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक इज आइटम ऑफ एडजस्टमेंट्स। ओके, तो याद रखो, whenever goods comes in, trading account is debited, whenever goods goes out, ट्रेडिंग अकाउंट इज क्रेडिटेड, और जो बच गया मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, expenses incidental to or related to purchase of goods are also debited to trading account. गुड्स परचेज करने के लिए खर्चे होंगे, गुड्स परचेज करने के लिए खर्चे होंगे। सर कौन से खर्चे? समझो मैंने गुड्स परचेज किया, ओके, वहां से बटन दबाया, वहां से गायब हो जाएगा और मेरी फैक्ट्री में आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं, गुड्स को मेरे को ट्रक में लाना पड़ेगा, टेम्पो से लाना पड़ेगा, या मेरे को रेलवे से लाना पड़ेगा, या शिप से लाना पड़ेगा। ओके, कोई ना कोई रीजन से मेरे को लाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर? वो उड़ के तो नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ मेरे खर्चे होंगे, राइट? पॉइंट क्लियर? तो उसको बोलेंगे एक्सपेंसेस इंसिडेंटल
और रिलेटेड टू परचेज ऑफ गुड्स। ऐसे कौन से खर्चे सर? ऐसे 6 खर्चे। कितने खर्चे? 6 खर्चे, राइट सर। कौन से? पहला है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मींस गुड्स लाने का खर्चा। तुमने देखा होगा टेम्पो था, टेम्पो क्या लिखा? गुड्स कैरियर। कैरियर मींस कैरेज इनवर्ड। ओके, तो गुड्स लाने का खर्चा कैरेज इनवर्ड। गुड्स रेलवे से लेके आओगे, जुजू गाड़ी से। गुड्स अगर रेलवे से लेके आओगे हमको पे करना पड़ेगा रेलवे फ्रेट। अगेन गुड्स लाने का खर्चा, टुडे अकाउंट डेबिट साइड। तो कैरेज इनवर्ड एंड रेलवे फ्रेट बोथ आर माय expenses incidental to purchase of goods, again today account debit side. Goods मैंने import किया है, तो I have to pay what? Import duty, or I can say custom duty. तो import duty and custom duty, again today account debit side. जब तक import duty या custom नहीं भरोगे तब तक goods हम वहां से निकाल के, एयरपोर्ट से निकाल के वापस नहीं ला सकते। ओके, तो कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, फिर डॉक चार्जेस। नाउ सपोज गुड्स में लेके आया, स्टीमर से लेके आया, सी वे से, समुद्र से लेके आया, तो शिप से लाऊंगा। तो जब शिप से गुड्स आएगा तब कहाँ रखना पड़ेगा? डॉक पे। तुमने देखा होगा हार्बर लाइन पे एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है डॉकयार्ड रोड। क्या स्टेशन का नाम क्या है? डॉकयार्ड रोड। डॉकयार्ड रोड सर, वो क्या है? डॉकयार्ड रोड। तो जो भी गुड्स आता है वो हम कहाँ रखते हैं? डॉक पे रखते हैं। कहाँ रखते हैं? वी कीप ऑन द डॉक। तो ऑन व्हेन वी कीप ऑन द डॉक टू पे व्हाट? डॉक चार्जेस। 2 से 3 दिन तक गुना रखा रहेगा। जैसे गुड्स आया तो सामने वाले डॉक से तुमको फोन आएगा कि सर योर गुड्स हैज बीन अराइव्ड, प्लीज कलेक्ट आफ्टर पेइंग द चार्जेस। जैसे उसने फोन किया, ओके, तब तुम क्या करोगे? जो भी पैसे, और तुम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रक वक्त में गुड्स ऐसे लेके नहीं आओगे, ट्रांसपोर्ट वाले को बोलोगे जा गुड्स लेके आ, उसका ये बिल्टी है, ओके, रिसिप्ट है, ओके, गिफ्ट रिसीव नोट वो लेके जाओ, वो दिखाओ और तुम जाके गुड्स लेके आओ। तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? डॉक चार्जेस पे करना पड़ेगा। तो ये भी गुड्स लाने का खर्चा है। नेक्स्ट है 6th है ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ओके, ऑक्ट्रॉय, तो ऑक्ट्रॉय भी क्या है? व्हेन goods transfer from one municipality area to another municipality area। एक म्युनिसिपैलिटी एरिया से हम दूसरे म्युनिसिपैलिटी से जाएंगे, ओके, तो हमको पे करना ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ओके, बट व्हेन GST was introduced on 1st July 2017, okay, this octroi charges has been abolished. Okay, but again sometimes in exam question they can ask octroi charges. Okay, so dock charges and octroi charges, or I can say GST on purchase, it will be debited to trading account. तो इसमें कितने सर? 6 है, और अगर I include GST तो GST के साथ वो जाएंगे 7। सर कौन से? कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, और I can say GST on purchase. ओके, ये क्या है? एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ गुड्स। ओके, ये भी कहाँ डेबिट होंगे? टुडे अकाउंट डेबिट साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ना, पॉइंट नंबर 5 क्या है? All expenses which are incurred for producing or manufacturing of goods are also debited to D account. जो भी गुड्स बनाने का खर्चा है, जो भी गुड्स, पहले क्या था? गुड्स लाने का खर्चा था। अगर मैं ट्रेडिंग कंसर्न हूँ, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं गुड्स को मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैंने फैक्ट्री डाला, लेबर को अरेंज किया, मशीन अरेंज करी, मैंने रॉ मटेरियल लेके आया। ओके, मैं रॉ मटेरियल लेके आया और बाद में मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया। से फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, बॉटल मैंने लाई 20 रुपए में, ये बॉटल आया मैं 20 रुपए में, और इसको मैं बेचता हूँ 25 रुपए में। तो मैंने परचेस क्या किया? बॉटल, और मैंने सेल किया बॉटल। तो मैंने कहा 20 बहुत महंगा पड़ता है, तो मैंने क्या सोचा कि अभी अपना टाइम आएगा। ओके, तो हम काम करते अब हम क्या करें? हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर को अरेंज करेंगे, मशीन लाएंगे, और ये बॉटल हम प्रोड्यूस करेंगे, इस बॉटल को बनाएंगे। तो हमने पूरा एस्टिमेट किया, अगर इसको मैन्युफैक्चर करते इस बॉटल को, इसका कॉस्ट होता है 12 रुपया। अगर हम परचेज नहीं करते, हम किसी से और से खरीदेंगे, हम मैन्युफैक्चर करते हैं
तो कॉस्ट इसका होगा 12 रुपीज। लेकिन हम जब परचेस करते हैं इसका कॉस्ट होता है हम लोग को 20 रुपीज। तो हमने सोचा कि काम करते इस बॉटम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। ओके, तो मैन्युफैक्चर कहाँ करोगे, घर में कि फैक्ट्री में? हाँ मैन्युफैक्चर करेंगे फैक्ट्री में। यह सिंपल लॉजिक है। सर क्या इतना सिंपल चीज पूछते हो? तो वी विल प्रोड्यूस ओनली एट द क्या आएगा, फैक्ट्री। अब जब गुड्स को हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे तो हमको पे करना पड़ेगा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ओके सर कौन से एक्सपेंस है? फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री अगर रेंट पे तो रेंट पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री अगर खुद का है तो इंश्योरेंस निकालना बहुत जरूरी है। ओके आजकल तो कभी भी आग लग सकती है, बहुत ही गर्मी होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो कुछ भी हो सकता है, तो इंश्योरेंस निकालना जरूरी है। तो प्रॉपर्टी खुद का है तो लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं। खुद का नहीं है तो दे डोंट परचेज द इंश्योरेंस। ओके, तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, तो जो भी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक फैन, ट्यूबलाइट या मशीन चलती है, किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी चलती है, राइट। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, ओके ये फैक्ट्री एक्सपेंस है। नाउ ये जो गुड्स मैन्युफैक्चर कौन करेगा, कौन मैन्युफैक्चर करेगा? लेबर। और लेबर क्या लेंगे? वेजेस। तो वेजेस जी दो टाइप के, ओके डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, या इसको बोलेंगे और इसका और एक नाम है डायरेक्ट वेजेस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस, आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस इज आल्सो कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो डायरेक्ट वेजेस हो या प्रोडक्टिव वेजेस हो, डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस is debited to trade account. Direct wages are those wages without which product cannot be produced, जिसके बगैर प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिसके बगैर हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पॉइंट क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेजेस। ओके, तो डायरेक्ट वेजेस आर दोज वेजेस विदाउट विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ओके, तो डायरेक्ट वेजेस हो ये प्रोडक्टिव वेजेस, नाम दोनों का मतलब एक ही। डायरेक्ट वेजेस इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्टिव वेजेस, दे आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो वेज हो गया फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट वेजेस। फिर आएगा पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल या मोटिव पावर। नाउ मशीन के लिए, मशीन चलाना है तो हमको कुछ पावर चाहिए ना। पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी अगर इसे चलती है तो, अगर मशीन चलती है पेट्रोल से या डीजल से तो उधर आएगा फ्यूल आएगा। तो समटाइम्स दे गिव द वर्ड पावर एंड फ्यूल, समटाइम ये गिव्स अ मोटिव पावर। मोटिव में जिससे जो चलती है, तो चलती किससे? कोल से चलेगी, इलेक्ट्रिक से चलेगी, पेट्रोल से चलेगी, डीजल चलेगी। ओके, तो दिस बोथ द एक्सपेंस आर इंटरचेंजेबल। ओके, दोनों का मतलब एक ही है, पावर एंड फ्यूल और आई कैन से मोटिव पावर। ये भी कहाँ खर्चा होगा? फैक्ट्री में खर्चा होगा। अगर फैक्ट्री में खर्चा होगा तो कहां पे आएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट है हीटिंग एंड लाइटिंग। नेक्स्ट क्या आएगा? हीटिंग एंड लाइटिंग। एक मिनट, बैटरी थोड़ा डाउन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा? हीटिंग एंड लाइटिंग। ओके, तो नाउ नेक्स्ट है, नाउ फैक्ट्री में, अगर फैक्ट्री में तुम देखोगे तो देयर आर द हीटिंग मींस कुछ चीजें हमको गर्म करनी पड़ती है, तो हीटिंग चार्ज लगेगा हम लोग को। ओके, ना हीट कैसे करोगे, ना कोई फ्यूल चाहिए मेरे को। तो हीटिंग एंड लाइटिंग, तो लाइटिंग मींस सेम एज इलेक्ट्रिसिटी, तो समटाइम्स दे यूज द वर्ड हीटिंग एंड लाइटिंग। और बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, जब तक तो पिघलाएंगे नहीं हम लोग। ओके, जिसको उसका मेल्ट नहीं करेंगे तो प्रोड्यूस नहीं होता है। तो हीटिंग एंड लाइटिंग अगेन इट विल बी डेबिट अकाउंट। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। अगर मेरे को गुड्स मैन्युफैक्चर करना है तो मेरे को क्या पे करना पड़ेगा? आई हैव टू पे व्हाट? रॉयल्टी। रॉयल्टी ऑन व्हाट? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। से फॉर एग्जांपल नाउ ये जो सी है इज बिलोंग्स टू गवर्नमेंट इंडिया, और नाउ पेट्रोल, इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोल फ्रॉम सी, समुद्र से पेट्रोल निकालना है तो तुम लोग को गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, just Reliance Petroleum, they extract petrol from where? From क्या आएगा? sea. सेम वे एक मूवी था, मैंने भी देखा, तुमने देखा होगा, गुंडे मूवी ना। कलकत्ता में सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है। ओके, पॉइंट क्लियर? अगर तुमको कोयला कहाँ मिलेगा? जमीन के अंदर, पहाड़ों से मिलेगा ना। जितना भी टन तुम लोग कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे, यू टू पे रॉयल्टी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो उसको बोलेंगे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन।
या किसी और कंपनी का प्लांट है, किसी और कंपनी का प्लांट है, लेकिन उसका प्लांट यूज करके मेरे को गुड्स प्रोड्यूस करना है, ओके, तो मेरे को उसको क्या पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, दिस डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सर रॉयल्टी ऑन सेल्स है तो जितना बुक, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑथर है, ऑथराइज बुक्स, तो जितना भी बुक बिकेगा, ओके, जितना भी बुक्स बिकेगा उस पर रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, तो सर रॉयल्टी ऑन सेल्स हुआ, या जितना भी मेरे गाने डाउनलोड होंगे, जितना भी गाने डाउनलोड होंगे उस पर अगर पैसा, उस पर रॉयल्टी है तो अगेन रॉयल्टी ऑन सेल्स है, तो रॉयल्टी ऑन सेल्स इज इन सेलिंग एक्सपेंस, वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ओके, तो रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट है उसके बाद वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मींस फैक्ट्री ना, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री बड़ी है जहाँ पे 100 से 150 वर्कर काम करते हैं, तो क्या चाहिए, मैनेजर चाहिए उसको चलाने के लिए, फैक्ट्री को मैनेज करने रिक्वायर मैनेजर, एंड दे आल्सो रिक्वायर सुपरवाइजर टू सुपरवाइज द वर्कर, के वर्कर काम कर रहे टाइम पास कर रहे हैं, ओके, तो वर्क्स मैनेजर सैलरी या आई कैन से सुपरवाइजर सैलरी इज आल्सो डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो वर्क्स मींस फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री का मैनेजर है तो इट विल डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, सुपरवाइजर सैलरी, ओके, तो वर्कर जब काम करते हैं तो मैं सुपर काम कहता हूँ, वर्कर को सुपरवाइज करना, क्या करना, सुपरवाइज करना, ओके, तो सुपरवाइज करना है, ओके, तो टू पे व्हाट, सुपरविजन चार्जेस, तो अगेन कहाँ पे आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ओके। नाउ अगर क्वेश्चन में दिया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगेन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, तो कहाँ पे आएगा, अगेन कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, तो दिस ऑल एक्सपेंस आर डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, तो सर क्रेडिट में क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, क्रेडिट में क्या आएगा, सेल्स, गुड्स डिस्ट्रेस फ्री सैंपल्स, नेक्स्ट गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर सॉरी पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, एंड जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड से 5 चीज आएगी, ओके, तो डेबिट साइड इज मोर इंपॉर्टेंट, तो क्या क्या है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 3 टाइप के लॉजिकल एक्सपेंस है, पहला whenever goods comes in trading account is debited, ये पहला है, फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इncidental टू परचेज ऑफ गुड्स, ये है क्या, हाँ ये है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, नेक्स्ट है ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, तो इट विल डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, पॉइंट क्लियर, तो एक्सपेंस रिलेटेड टू परचेज एक्सपेंस, सॉरी परचेज कॉस्ट, सेकंड इज expense to purchase, and third is production expenses, manufacturing expenses, okay, ये है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और whenever goods goes out ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रेडेड, इसमें क्या इनकम में एक ही सेल्स, सेल्स इज माय रेवेन्यू, इज माय इनकम, ओके, पॉइंटर, और उसके अलावा whenever goods goes out ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रेडेड, और जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, ओके। नाउ लेट अस, नाउ इसके बाद है द नेट रिजल्ट, the net result of trading account, the net result of trading account is either gross profit or gross loss, the net result of trading account is either gross profit or gross loss, तो trading account का net result क्या है, या तो gross profit है या तो क्या है, gross loss है, okay, so sir gross profit को हुआ whenever debit side is more than credit side, एक मैं स्क्रीन शेयर करता हूं फिर से, तो दैट द नेट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इफ डेबिट साइड इज मोर, if credit side is more and debit side less, means income is more and expense is less, okay, if credit side, यहाँ पे देखो, if credit side is more than debit side, और आई कैन से क्रेडिट साइड में क्या था इनकम, डेबिट साइड में क्या था एक्सपेंस, सर कैसे, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेन्स, तो ट्रेडिंग के कैटेगरी में क्या आएगा, इनकम, डेबिट में क्या आएगा, एक्सपेंसेस, क्रेडिट ज्यादा है मींस इनकम ज्यादा है, डेबिट कम है मींस एक्सपेंस कम है, तो इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है, तो सर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड इज मोर एंड क्रेडिट साइड इज लेस,
if debit side is more and credit side is less, okay, means expense is more, income is less, तो क्या आएगा सर? तो आएगा ग्रॉस लॉस आएगा। क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, this gross profit or gross loss will be transferred to profit and loss account. Okay, so gross profit will be transferred to profit and loss account credit side. क्यों सर? Profit always has credit balance, तो अगर gross profit है it will be transferred to profit and loss account credit side. का ट्रांसफर का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और अगर ग्रॉस लॉस है, लॉस ऑलवेज हैज डेबिट बैलेंस, तो ग्रॉस लॉस है इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो द नेट रिजल्ट ऑफ द अकाउंट is gross profit or gross loss. If credit side is more and debit side less, means income is more, expense less, means gross profit. Expense debit side is more and credit side less, means expense is more, income is less, so gross loss. Gross profit is transferred to profit and loss account credit side, and gross loss is transferred to profit and loss account debit side. Okay, so this is a complete explanation of day account. Now let us see the format of trading account. जो हमने पूरा एक्सप्लेन किया उसका भी पूरा फॉर्मेट है। ओके, तो याद रखो, ऑलवेज यू कीप इन माइंड द लॉजिक कि सर डेबिट में क्या क्या आएगा। सर गुड्स आया, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर गुड्स लाने का खर्चा है सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर ये गुड्स बनाने का खर्चा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर गुड्स बेचा तो इनकम है, रेवेन्यू क्रेडिट साइड। सर गुड्स बांटा तो गुड्स गया, डे अकाउंट क्रेडिट साइड। सर गुड्स पार्टनर ले लिया काय के लिए? पर्सनल यूज के लिए, गुड्स गया, डे अकाउंट क्रेडिट साइड। सर गुड्स जल गया तो गुड्स गया, डे अकाउंट क्रेडिट साइड। सर गुड्स चोरी हो गया तो गुड्स गया, डे अकाउंट क्रेडिट साइड। सर ये गुड्स बच गया तो डे अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, तो तुमको ये लॉजिक याद रखना है। सर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट है। ओके, तो इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम है। सर डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा? ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट है, क्रेडिट बैलेंस है, पीएनएल क्रेडिट साइड जाएगा। ग्रॉस लॉस क्रेडिट बैलेंस है, कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो तुमको ये लॉजिक तुमको याद रखनी है। ओके, नाउ लेट अस सी द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, नाउ सर ग्रॉस प्रॉफिट वाला स्लाइड फिर से लगाओ। नहीं मैं एक्सप्लेन करूंगा, नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ओके, तो मैं इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे दिख जाएगा तेरे को अभी, राइट? यहाँ पे दिख जाएगा, इस फॉर्मेट में दिख जाएगा। वेट फॉर 2 minutes. नाउ सी डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, परचेज व्हेनेवर गुड्स कम्स इन टुडे अकाउंट डेबिट साइड, तो गुड्स परचेज करने का कॉस्ट, उसमें से अगर रिटर्न्स माइनस किया है तो परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड, और आई कैन से रिटर्न्स, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस एंड ऑक्ट्राइज चार्जेस, इसमें और एक आएगा जीएसटी ऑन परचेज, ये गुड्स लाने का खर्चा है, तो कहाँ पे आएगा? टुडे अकाउंट डेबिट साइड। और बाकी जितने भी एक्सपेंस है, बाकी जितने एक्सपेंस है सारे के सारे मैन्युफैक्चर एक्सपेंस है, या फैक्ट्री एक्सपेंस है, या प्रोडक्शन एक्सपेंस है, गुड्स बनाने का खर्चा है। सर डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्टिव वेजेस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, power and fuel or motive power, coal, water, gas, royalty on production or purchase, works minimum salary, supervisor salary, ये सब कौन से एक्सपेंस है? फैक्ट्री एक्सपेंस है। Again, it will be debited to trading account. Now credit side, whenever goods goes out, trading account is credited. तो sales, when you sell the goods, goods goes out. लेकिन now मैंने goods sell किया, उसमें से कुछ गुड्स एज पर सैंपल नहीं है, एज पर साइज नहीं है, एज पर कलर नहीं है, या इंफीरियर क्वालिटी का, या डैमेज हो गया, तो जिसको मैंने गुड्स बेचा है वो गुड्स वापस रिटर्न करेगा। तो सेल्स अकाउंट इज हैज क्रेडिट बैलेंस। क्यों सर? सेल्स हमारे इनकम है, तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस है। तो सेल्स रिटर्न कौन सा डेबिट बैलेंस होगा? Okay, so trial balance means sales will be given on trial balance credit column, and sales run or return inward will be given on trial balance debit column. तो जो sales डेबिट में दिया है वो डेबिट से माइनस करेंगे,
और जो सेल्स क्रेडिट में दिया है वो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे। ओके, पॉइंट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो सेल्स लेस टन्स बाय गुड्स से फ्री स्टेपल्स, गुड्स गया टुडे अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल, गुड्स गया टुडे अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और थेफ्ट, गुड्स गया टुडे अकाउंट क्रेडिट साइड। जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, टुडे अकाउंट क्रेडिट साइड। नाउ अब तो मैं तो डाउट क्लियर करता हूं, इफ क्रेडिट साइड इज मोर, ओके, इफ क्रेडिट इज मोर एंड डेबिट साइड इज लेस, तो क्या आएगा सर, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ओके, इफ डेबिट साइड इज मोर, अगर डेबिट ज्यादा है, ओके, और क्रेडिट कम है, मींस एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस आएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो इस केस में क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, मींस इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ये कहाँ पे आएगा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। क्यों सर, क्रेडिट बैलेंस है, सिंपल है, क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो जो ग्रॉस में कौन सा क्रेडिट बैलेंस है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। लेकिन अब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, ओके, तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। तो ग्रॉस लॉस क्रेडिट में आया, इसका मतलब डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो कौन सा बैलेंस हुआ, डेबिट बैलेंस हुआ। तो डेबिट बैलेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू टुडे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, एंड ग्रॉस लॉस इज ट्रांसफर टू टुडे transfer to profit and loss account debit side. Okay, so this was the concept of trading account. Okay.